Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you? I will hope you all will fine. And my dear students, today we will start our chemistry book 10 class lesson 1, and the name of topic is reaction and its types. My dear student, first of all we study about the reaction, that what is reaction. My dear student, a reaction is a chemical change. Reaction is a chemical change. Reaction is a chemical change which forms new substances. Reaction is a chemical change which forms new substances. Which form new substances. रिएक्शन एक केमिकल चेंज होती है जिसके अंदर नई चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, नई चीज़ें बन जाती हैं। दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और नई चीज़ें बन जाती हैं, या फिर एक चीज़ टूटती है और टूटकर दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ें बना देती है। ठीक है जी। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज विच फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट रिएक्शन. व्हाट इज कंप्लीट रिएक्शन? कंप्लीट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच all the reactants have been converted into products, in which all the reactants have been converted into products. All the reactants have been converted into products. ओके। कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स बाकी ना बचें और सारे के सारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके क्या बन जाएं? प्रोडक्ट्स बन जाएं। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस. कंप्लीट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू products. My dear students, our next definition is natural equilibrium. What is natural equilibrium? Natural equilibrium is actually an applied example of equilibrium. You know that man and plant, we will learn it with the help of an example. Man has the property, has the ability to release carbon dioxide gas during respiration, and at the same time plants use carbon dioxide for photosynthesis. During the photosynthesis, plants release oxygen gas, and at the same time the man utilize the oxygen for breathing process. So it's a natural equilibrium. Both these things are natural. Man release carbon dioxide and plants release oxygen. Man utilize the oxygen and plants utilize the carbon dioxide. नेचुरल इक्विलिब्रियम के अंदर इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के जरिए से खारिज करते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. मैन उसे यूज़ कर लेते हैं. इस तरीके से इन दोनों गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, एक नेचुरल इक्विलिब्रियम रहता है, एक बैलेंस रहता है. माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी विल लर्न अ न्यू डेफिनेशन whose name is reactants. What are reactants? In a chemical reaction, the substances that combine
द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ रिएक्शन, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ रिएक्शन are called reactants, For example, when hydrogen gas react with oxygen gas, it will form water. To balance it, we write here 2 and 2 is there. So these two substances are react with each other, so they are called reactants. Reactants are those substances which react with each other. My dear students, so आप अच्छी तरीके से बात को समझ चुके होंगे कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है, चूँकि ये चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, इसे इन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। दो सब्सटेंसेस विच कंबाइन इन अ रिएक्शन, वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो इस वाली क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स, जो कि आपस में कंबाइन हो रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट्स. These are basic definitions. So now what are the products? In a chemical reaction, when reactants react with each other, they will form new substances. In a reaction, the new substances which are formed, the new substances which are formed are called products. In a chemical reaction, the new substances that formed are called products. For example, when hydrogen gas react with oxygen gas, it will form a new substance known as water. So my dear students, these substances are combined, these are called reactants, and these are new substances are formed, these are called, my dear students, we repeat it once again, products are new substances that are formed are called products. In a chemical reaction, the new substances that are formed are called products. Chemical reaction में जब नई चीज़ें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन में आप देखिए, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट किया है उसने, तो कौन सी नई चीज़ बनी है जी? वाटर बना है, और वाटर यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते. ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते. अगर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स ना बनाएं तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. Those reaction in which products don't recombine to form reactants. ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टर्स ना बनाएं उन्हें क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन. जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि दे सपोज टू बी कंप्लीट, वो मुकम्मल हो जाते हैं. दे आर सपोज टू बी कंप्लीट. तीसरी प्रॉपर्टी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो के साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है
तो ये वाटर बनाती है। अब इस वाले रिएक्शन में वाटर दोबारा डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं बना रहा, तो हमने इसे किस एरो से रिप्रेजेंट किया? सिंगल एरो से। तो हमने कहा अगर हमारे प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, our topic is reversible reactions. Reversible reaction are those reaction in which products can recombine to form reactants. ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होके दोबारा आपस में मिलकर रिएक्टर्स बनाना शुरू कर दें, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, नेवर कंप्लीटेड। ये कभी मुकम्मल नहीं होंगे। क्यों नहीं मुकम्मल होंगे? क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होकर क्या बनाना शुरू कर देंगे? रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कंप्लीट रिएक्शन की पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी कि कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स क्या बना दें? प्रोडक्ट्स बना दें। क्योंकि यहाँ पे तो सारे रिएक्टर्स ने प्रोडक्ट्स बनाए नहीं हैं, अभी थोड़े से प्रोडक्ट्स बने थे कि प्रोडक्ट्स ने दोबारा क्या बनाना शुरू कर दिया? रिएक्टेंट्स। तो अब क्या होगा कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट्स क्या बनाते रहेंगे? रिएक्टेंट्स। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे जी? रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको डबल एरो बना के दिखाया है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। किनको जी? रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एट द एंड, माय डियर स्टूडेंट, आई विल गिव यू एग्जांपल of reversible reaction. For example, when hydrogen gas combine with iodine gas, it will form hydrogen iodide gas. My dear students, आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही है, और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दोबारा ब्रेक होकर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाना शुरू कर दिया है। इट्स मीन कि ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ये एरो बता रहा है ये वाला कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, और नीचे वाला एरो बता रहा है कि रिएक्शन रिवर्स है। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। सो इन दिस वे माय स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट these reactions are not complete. They are never completed. Why? Because in these reaction products can recombine to form reactants. Therefore they are called reversible reaction. My dear student, at the end of the lecture I will give you a little task of the day. आखिर में मैं आपको कुछ थोड़ा सा काम दूंगा कि आपने आज करना क्या है। एक तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है जी, वो आप लर्न करेंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप ये कुछ टास्क हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन,
और डेफिनेशन ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को मैंने आपको 4 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, और बाकी तमाम डेफिनेशन को मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आप इसको एक मरतबा लिख लेंगे। कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का अगला लेसन नंबर 2 आपको स्टार्ट करवाएंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कल हम इंशाल्लाह जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी जी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको ये सारी स्लाइड्स दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको ये फुल फ्लैश डेफिनेशंस रेडीमेड फॉर्म प्रिपेयर फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक से भी आप याद कर सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आसान वर्डिंग में लिख दिया है। केमिस्ट्री 10 क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने इसके अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन आज सिखाई हैं। पहली डेफिनेशन मैंने आपको रिएक्शन की करवाई है। देखिए जी, अ रिएक्शन इज़ द केमिकल चेंज विच फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है जी, आज की दूसरी डेफिनेशन हमारी होगी कंप्लीट रिएक्शन। ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो आप देख लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है और ये प्लांट्स है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है। जबकि प्लांट्स जो हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं जिसे ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है जी, उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं जी? इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में वो चीज़ें जो आपस में कंबाइन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो ये देखिए जी, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं, वाटर बन गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लीजिए जी, प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। देखिए, वाटर फॉर्मेशन हुई है किससे बेटा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर बन रहा है, ये क्या हमारा? ये एज ए प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको मैंने ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते रिएक्टर्स बनाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सपोज टू कंप्लीट, ये मुकम्मल हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? सिंगल एरो के साथ। ठीक है, जो सिंगल एरो कहाँ लगाना है? बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये देख लीजिए जी, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या लगाया है? सिंगल एरो लगाया है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे, इसलिए क्या है जी? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं जी। और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है जी, these रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो। ठीक है जी, इसे डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लास्ट क्लास का एग्जांपल देख रहे हैं जी, ये देखिए, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हमने उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी, ये आप सारी डेफिनेशन कल याद कर लेंगे। ठीक है, से एक बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।